Hello students, we are continuing MCQ based on case scenario. So this case scenario is based on asset recognition with a major topic on in case 41 where we will discuss recognition of biological assets. So basic purpose of this MCQ is that you will get good practice to solve practical problems during exam case. So let us say that are given in this scenario. So we are given that so Seva Gary Limited prepares its financial statements on 31st March every year. On 1st April of current financial year, company carried out the following transactions. So it has purchased a land for 60 lakhs and it purchased 200 dairy cows. Average age as on 1st April 2 years 4 rupees 20 lakhs and received a non-refundable grant for rupees 10 lakhs towards acquisition of cows. तो कंपनी ने एक लैंड परचेज की है और हमने डेयरी काउस परचेज कर रहे हैं विच इज कॉल्ड बायोलॉजिकल एसेट और एक आपको ग्रांट रिसीव हो रही है विच इज नॉन रिफंडेबल. So during the year ending our current financial year on 31st March, company on its dairy cows incurred 8.50 lakh to maintain their condition, food and protection and 4.60 lakhs as breeding fee to a local farmer. तो ये आपके एक्सपेंसिव हैं ऑन डेयरी फार्म. On 1st October of current financial year, 120 calves were born and there were no other changes in the number of animals during the year ended 31st March. बस सिर्फ एक न्यू बर्थ हो रहा है 120 काफ्स का और कोई चेंज नहीं है आपकी. सेवा डेयरी लिमिटेड हैड 3200 liters of unsold milk in inventory on 31st March, which is the year ending current financial year. So milk was sold on 1st and 2nd April of next financial year. So it means this is unsold inventory of milk by the end of this current financial year. The information regarding fair values less cost to sell is given in rupees. तो आपको फेयर वैल्यूज दी हैं 1st April 20, 1st October 20, 31st March, 31st March. Then land is given, newborn calves are given per calf, 6 months old calves is given per calf, 2 years old cow, 3-year-old cow and milk per liter. तो सभी के प्राइसेज आपको दिए हैं एज 1st April ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर, 1st October एंड 31st March. फिर इनके बेस पर अब आपके डिफरेंट MCQ हैं. So number 1, so we have to determine cost of biological assets which is calves recognized on 1st October of current financial year. तो पहले देखिए आपको कैलकुलेट करनी है MCQ नंबर 1. What is our cost of biological asset? So this is our calves. So this we have to determine on 1st October of current financial year. तो आपको मेंशन किया है 120 जो काव्स हैं दे वर बोर्न. इट मीन्स इट इज गिवन दैट 120 काव्स आर बोर्न ऑन 1st October. तो उसकी जो वैल्यू होगी इसको वैल्यू करेंगे हम एट टू फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल एज ऑन 1st October. दिस इज गिवन न्यू बोर्न काव्स वैल्यू 2300 पर काफ. तो उसकी देखो एंट्री क्या बन जाती है आपकी, इसकी एंट्री बन जाती है बायोलॉजिकल एसेट और आप मेंशन कर सकते हैं ब्रैकेट में दीज आर काफ्स अकाउंट डेबिटेड. ये आपने परचेज नहीं किए, इनका वर्क हो रहा है तो इट मीन्स ये आपकी इनकम मानी जाएगी जिसको आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है. तो दीज आर वैल्यूड एट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, वो आपको मेंशन कर रखी है इन्होंने. तो दिस विल बी अवर 120 काफ्स हैं और इनकी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल इज गिवन ऑन 1st October जिसे 2300. तो इट मीन्स ये आपकी वैल्यू बन जाएगी. तो लेट अस सी हाउ मच इज टोटल वैल्यू, दिस इज 120 इनको 2300, दिस इज 276,000. तो आपका आंसर आ जाएगा वैल्यू ऑफ बायोलॉजिकल एसेट एज ऑन 1st October इट इज रिकॉग्नाइज्ड. सो दिस इज 276,000. Now you can see which option is correct. Answer is option B is correct. Next we have second MCQ. Now we are asking to determine gain or loss due to price change of biological assets for current financial year ending as at 31st March. अब आपको ये देखना है कि कितना आपको गेन या लॉस हो रहा है ड्यू टू प्राइस चेंज. तो प्राइस चेंज होता है कि आपकी फेयर वैल्यू चेंज हो गई है पर आपने जो एज है अपने बायोलॉजिकल एसेट की वो आपने सेम रखनी है. तो इसमें देखिए अब आपके पास दो
बायोलॉजिकल एसेट्स हैं। एक आपने परचेज की थी काउस जिसकी एज थी 2 ईयर्स एंड दे वर परचेज ऑन 1 अप्रैल। इट मीन्स वी हैव नंबर 1 2 ईयर्स काउ। पर एक आपके थे न्यू बोर्न काफ्स। प्राइस चेंज हम लेते हैं कि आपने उनकी एज सेम रखनी है और फिर आपने चेक करना है साल के एंड में आपकी फेयर वैल्यू में कितना चेंज आ रहा है। तो काउज है आपके पास, ये हमें मेंशन की हैं। तो गिवन्स आर 200 काउज और काफ्स हैं आपके 120। तो आप देखिए कितनी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कितनी है आपकी 2 ईयर की, वो आपको मेंशन की है। तो ये आपने लेनी है एज ऑन 31 मार्च को। देखो 2 ईयर्स ओल्ड काउ, अब उसकी फेयर वैल्यू हो गया 10,500, जिसे 10,500। एज आपने सेम रखनी है 2 ईयर। फिर आप देखिए जब बिगनिंग में 1 अप्रैल को आपने जब ये काउ एक्वायर की थी उसकी फेयर वैल्यू हमें मेंशन की थी एज ऑन 1 अप्रैल फॉर 2 ईयर काउ जिस पर 10,000। तो इतनी जो डिफरेंस है वो आपका प्राइस चेंज आ गया है। ऐसे काप्स हैं आपके न्यू बोर्न काप्स की कोई वैल्यू कितनी है 31 मार्च को की है न्यू बोर्न काप्स जिसे 2500। पर जब आपने इनको रिकॉग्नाइज किया था 1 अक्टूबर में, यानी दिस फेयर वैल्यू आ गई 2300। तो इट मीन्स दिस इज आल्सो इंक्रीज इन प्राइस एंड दिस इज आल्सो इंक्रीज इन प्राइस। तो इससे आपको गेन हो रहा है ड्यू टू प्राइस चेंज। तो गेन ड्यू टू प्राइस चेंज। तो दिस इज इक्वल टू 500 इंटू 200 रुपीज 1 लाख एंड दिस वन इज 200 इंटू 120 दिस इज 24,000। तो टोटल जो गेन है आपका जो पी में क्रेडिट होगा जिसे 1,24,000। तो ये आपको गेन हो रहा है ड्यू टू प्राइस चेंज। रुपी अमाउंट्स आपके रुपीज़ में हैं। तो लेके सी विच ऑप्शन इज करेक्ट। तो इन दिस केस हमारा आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट we have third MCQ. Now they are asking determine gain or loss due to physical change of biological assets for current financial year ending 31st March. तो अब आपको डिटरमिन करना है हाउ मच इज गेन और लॉस इन बायोलॉजिकल एसेट एंड दिस वन इज ड्यू टू फिजिकल चेंज। क्योंकि फिजिकल चेंज होते हैं। जब अपने काउ एक्वायर की थी उस टाइम इसकी एज थी 2 ईयर्स है, अब साल के एंड में अभी 1 ईयर इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन किसी के ड्यू टू इंक्रीज इन एज, जो एज इंक्रीज हो रही है बायोलॉजिकल ऐसे के, उसके कारण आपको कितना गेन या लॉस हो रहा है। तो मीन्स नंबर 1 अब आपके पास काउस हैं, ये यार 200 ने प्राइस का चेंज को कैलकुलेट कर ही लिया है। अब देखो, अब देखिए ये काउ जो 2 साल की थी अब उसकी एज हो जाएगी 3 ईयर्स। अब उसकी फेयर वैल्यू दी है आपको 31 मार्च को 11,000 एंड इफ यदि आप लेते हैं कि 2 ईयर्स है उसकी वैल्यू आपने लेके 10,500, इट मीन डिफरेंस जो है वो आपका गेन आ जाएगा। तो किसी 500 किसी आल्सो 1 लाख रुपीज। इसी तरीके से जो काप्स थे आपके टेबल की, ये न्यू बोर्न काप्स थे 1 अक्टूबर, अब 31 मार्च को इनकी एज हो जाएगी हाफ ईयर। अब उसकी आपको फेयर वैल्यू दी है 6 मंथ्स ओल्ड काप्स, अब उसकी फेयर वैल्यू है 2800। पहले आपने ली थी 31 मार्च को न्यू बोर्न काप थी 2500, तो इसमें गेन हो रहा है आपको 2800 माइनस 2500 मीन्स 300 जिसे 36,000। इट मीन्स टोटल गेन ड्यू टू फिजिकल चेंज बाय द एंड ऑफ 31 मार्च दिस इज रुपीज 1,36,000। So now you can say which option is correct. The answer is option number A is correct. Next we have a 4th MCQ. So now they are asking determine net gain or loss to be recognized in a statement of profit and loss for current financial year ending 31st March. तो आपने लिखना है कितना गेन या लॉस हो रहा है हमें करंट फाइनेंशियल ईयर में। तो इसलिए हम प्रिपेयर करते हैं P&L अकाउंट जिसे जो फॉर करंट फाइनेंशियल ईयर। तो अमाउंट्स हैं आपके रुपीज़ में। तो पहले देखते हैं कि आपके गेन्स इनकम से कौन कौन सी हैं। तो गेन्स में आप देखिए सबसे पहले आपने काउ एक्वायर की थी, फिर आपको एक गवर्नमेंट से ग्रांट मिल रही है विच इज नॉन रिफंडेबल, तो ये भी आपकी इनकम बन जाएगी। लेट अस राइट गवर्नमेंट ग्रांट जिसे ये 10 लाख। फिर न्यू काप से बोर्न हो गए थे तो ये भी आपकी गेन है, इसकी इनकम आपने रिकॉग्नाइज की थी, इनको हमने वैल्यू दिया था उनका बेसिस ऑफ फेयर वैल्यू ऑन 1 अक्टूबर। तो ये थी आपकी 2300 इंटू 120 276,000, ये आपका गेन बन जाएगा।
फिर आपने देखना है साल के में कितना चेंज आ रहा है, यानी किसी की प्राइस चेंज, उससे को गेन या लॉस हो रहा है। फिर आपने कैलकुलेट किया था फिजिकल चेंज, तो प्राइस के कारण आपको गेन हो रहा है कैसे 124,000 एंड फिजिकल चेंज का गेन है 136,000। फिर आपको फर्दर मेंशन किया है गेट मिल्क आल्सो, तो मिल्क की वैल्यू है 3200 लीटर्स और इसकी जो को फेयर वैल्यू दी है 31 मार्च को, जिसे 30 रुपीज़। ये हमारा अनसोल्ड मिल्क है, अनसोल्ड इन्वेंट्री ऑफ मिल्क, तो जिसे गिवन लीटर्स हैं आपके 3200 और इसकी जो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल है 30 रुपीज़, 3200 इंटू 30, so this will be 3200 into 30, 96,000। ये टोटल गेंस आ जाएंगे, इनमें से लेस कर लीजिए आप एक्सपेंसेस जो आपने इनकर किए हैं ड्यूरिंग द करंट ईयर। एक्सपेंसिव में देखो आपको मेंशन किए हैं, नंबर 1 गेयर बाग अबर जिस वन फूड एंड प्रोटेक्शन एक्सपेंसिव, तो मेनली फूड एक्सपेंसिव हैं। सेकंड आपको फिर मेंशन किए हैं जिसकी जो ब्रीडिंग फीस, फूड एक्सपेंसिव आपको मेंशन किए हैं 1,50,000 और जो ब्रीडिंग एक्सपेंसिव हैं आपके गिवन आर 4,60,000, तो टोटल बिल भी अबर 13,10,000। तो बैलेंस आपका नेट गेन आ जाएगा जो आपने P&L में ट्रांसफर करना है, तो दिस इज अवर नेट गेन इन करंट ईयर। तो लेके से बचा टोटल इनकम से जिसे 1276 प्लस तो जिसे ये 260 प्लस 96 1632, so net income is coming over 3,22,000। amounts आपके हैं रुपीज में। Now you can see which option is correct, answer is option B is correct। So next we have MCQ number 5, they are asking determine carrying value of biological assets which are cows and calves at year ending on 31st March। तो अब आपने कैरिंग वैल्यू मीन्स बुक वैल्यू कैलकुलेट करनी है, जिसे आल्सो कहा जाएगा कैरिंग अमाउंट ऑफ बायोलॉजिकल एसेट्स। ये आपने कैलकुलेट करना है एट ईयर एंड एट 31st मार्च। तो आपके बुक्स में अब गो बायोलॉजिकल एसेट्स हैं, नंबर 1 है काउज और सेकंड है काफ्स। काउस हैं आपकी 200 एंड काफ्स हैं 120, तो इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए जो इनकी फेयर वैल्यू है एज ऑन 31st मार्च। काउ की फेयर वैल्यू की 3 ईयर ओल्ड हो गई है 11,000 और काफ्स की एज हो गई है 6 मंथ्स और इसकी वैल्यू है 2800। So this will be our total carrying value of biological assets, this is 22 lakhs plus 120 into 2800, 336,000। So total value is 25,36,000। So now you can see which option is correct, answer is option C is correct। In this lecture, we have discussed a case scenario based on India's 41 regarding recognition of biological assets। फर्दर टॉपिक कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो आपको अच्छी लगी है सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।